Assalamualaikum everyone. So we're just gonna wait for a few viewers to join us before we may begin. If you can mention in the comments that the audio and the visual is clear. Thank you. I have a comment from Kutubuddin, so I think we are good to go. So, Assalamu alaikum everyone. This is Rita Zainab. I work as a coordinator at Creative Dinner House, and I'm so excited to be here today. Uh, I will be moderating today's session for the United Health Organization. UHO is an NGO, and I think the aim of this NGO is to say join hands with all the professionals and give one platform where people can easily access the healthcare professionals, medical professionals. Psychologists, pharmacists. So it's a combination of all the professionals, and they have started this venture so that people can have easy access. And this webinar series is we are starting about OT, occupational therapy. It's a hot topic, so I'm really excited. The guest with me today is Sadia Umar. I'm sure you all have heard about her, but I will still give a brief introduction before having her on set. So really excited. Sadia Umar has been working for a long time now, and like she has been in this field for I think since 2014. Yes, she has been in this field since 2014, and she's very innovative, especially because in her career she has worked in domains which include community-based rehabilitation, clinical practice, inclusion, and tele rehab as well. And she's the founder of Cafe of Existence. So I will just add her now. Just give me a second. And thank you so much, Alia Javed, for your comment. Really happy that you have joined us today. So, Sadia is joining us. Assalamu alaikum, Sadia. वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं How आप are you today? Alhamdulillah, bilkul theek. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine as well. ठीक. So, Sadia, as you know, today's topic is what it means to be an occupational therapist. And I think the best way to start is to start from your journey, how you came into this field. Okay. I have discussed it before. It was an Yeah. accident, and it was a beautiful accident. Seriously, I Yeah. was planning to go to another field, but because of competition and everything, I was never able to join that particular field which I have chosen for Mhm. my life. But then I came to know about occupational therapy, and I thought I give it a chance. How did you Because come to I know want about to get a occupational professional. therapy? How did you come to know about this field? Basically, it happened when I want to be a dentist. ठीक Mm-hmm. है मेरे पे नहीं हुआ मेरा admission in Dow, so I came ठीक to है. know about their allied health, and then I applied for it. ठीक है तो Okay. फिर जब सीट्स की कॉल आई एंड आई हैव अप्लाइड लाइक रैंडमली, बिकॉज मुझे उनमें से किसी भी फील्ड के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, बट ठीक है. मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए थी मेडिकल। तो जब मुझे कॉल आई वहां से टू चूज बिकॉज यू हैव गॉट द मेरिट लिस्ट, Yeah. देन फिर मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में देखा एंड आई रेड अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मुझे सिर्फ उसके अंदर दो चीजें अच्छी लगी, एक तो ये कि आप स्पेशल नीड्स के साथ काम कर रहे हैं, जी. ठीक है, और दूसरा ये कि ये एक ऐसा काम था जिसके अंदर लाइक इफ यू अर्न स्टिल यू गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स, दुआएं मिलती, कुछ अच्छा करने को Definitely. मिलता। बस मुझे ये था कि कुछ कोई अच्छा काम कर सकती मैं, दैट्स इट। एंड देन Community मैंने के लिए तो है ना हाँ बिल्कुल. कह दिया और हो गया। ठीक है. So join आपने फील कर ली obviously, तो और आप डेंटिस्ट बनना चाहती थी, and this is like very pulls apart from being a dentist. So आपका initial किस तरह से था, क्या reaction था when you joined the field?
ठीक है, और फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमें पहले बिल्कुल ब्रीफ बता दें, व्हाट इज ऑक्यूपेशन थेरेपी अबाउट? ऑक्यूपेशनल थेरेपी लाइक इट्स नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ठीक है। इट मीन्स लाइक एनी वर्क, ठीक है। जैसे खाना खाना भी एक काम ही है, एक ऑक्यूपेशन है। बनाना, अपने कपड़े पहनना, अपना कोई भी काम, एक्स वाई जी, ठीक है, डेली लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का, ठीक है, इवन सोशली किसी से एंगेज होना, दीज ऑल आर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो इसीलिए ठीक इसका है। नाम ऑक्यूपेशनल थेरेपी रखा गया है कि लाइक एनी टास्क इन योर लाइफ विच यू वांट टू डू, ठीक है, उसको अगर करने में कोई डेफिसिट आ रहा है आपका, तो देन देयर आर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हु विल हेल्प यू टू अडेप्ट और टू हैबिलिटेट एट द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, कि जिसमें वो आपको एम्पावर कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। इसलिए ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इट्स मी, ठीक है। एंड लाइक about me when I started occupational therapy studies, तो 2-3 months तक मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज कभी सुना नहीं था इसके बारे में, और काफी डिफरेंट फील्ड थी। जी। तो मैं थोड़ी पजल भी थी कि कंटिन्यू करूं, स्टॉप कर दूं, मतलब ये वाली कंफ्यूजन चल रही थी। बट बिल्कुल। एक चीज ये डिसाइड की थी कि प्रोफेशनल डिग्री लेनी है। अगर मैं यहाँ से निकलती तो शायद मैं किसी और प्रोफेशनल डिग्री की तरफ उस वक्त जा नहीं सकती थी ऑन ऑनेस्ट ठीक बेसिस। है। तो आई ठीक थॉट है। 1 साल लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। एंड देन लेटर ऑन वन 6 months पास आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे मेरी फील्ड बेइंतहा अच्छी लगने लगी। इवन आई स्टार्टेड गाइडिंग अदर स्टूडेंट्स कि इसमें चले जाओ, फिजिशियंस बहुत है, डेंटिस्ट बहुत है, चूज समथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप भी है एंड यू आर डूइंग समथिंग विच इज नीडेड बाय द सोसाइटी फॉर नाउ। हेलो। And we are right back. So, sorry. I'm sorry for the technical delay, everyone. Since it just started raining, so my Wi-Fi acted up. So I apologize for that. Okay. The weather, unpredictable, and anything can happen. Okay. So, Sadia, थोड़ा सा अब जैसे कि occupational therapy है, तो obviously when it's about occupation, so it applies to, like all age factors, right? You would be working with kids, you would be working with the teenagers, adults, and you would be working with older people as well. So, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने किस एज ब्रैकेट के साथ ज्यादा काम किया है, and then we can talk about like in detail. We can start with the younger, with kids, कि how an occupational therapist works with them, and then talk about all the age groups. Okay. During my professional journey, I work most with geriatrics and Mm-hmm. peds. मिडिल एज के साथ मेरा काम कम है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ, जब हम प्रैक्टिस में थे एट इंटर्नशिप्स, उस वक्त ठीक है। मैंने काम किया मिडिल एज के साथ। उसके बाद कम किया है, इसलिए कि नहीं किया, किया है बट उतना नहीं किया। जीरियाट्रिक के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम रहा एक टाइम तक। Mm-hmm. रिसेंटली फ्रॉम लाइक लास्ट 3 years आई एम वर्किंग मोर विद पीड्स बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई वर्क मोर इंक्लूजन। जी। मैं इस साइड पे ज्यादा आ गई हूँ, तो इसलिए इस वक्त लाइक लास्ट 3 years से मेरा काम पीच पे जाता है। ठीक है। एंड पीच पे काम करने में जितना आप एंजॉय करते हैं, जितना आपको एरिया मिलता है काम करने का, तो Mm-hmm. उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। Like, आप स्टक हो जाते हैं Definitely. क्योंकि इतना कुछ होता है कि बस आप करते चले जाओ, आपके पास दूसरे तरफ जाने की आपको जरूरत ही नहीं होती है। Listen. And children सो इट्स always लाइक दीज surprise थिंग्स। you. Like professionally भी ना, I think कि children like really challenge you. क्योंकि उनके इतने मतलब every child is so unique. और इस तरह के challenges आपको represent करते हैं कि you're like okay, I need to keep working with them. यस। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि how does an occupational therapist work with children? वर्क विथ। चिल्ड्रन, थोड़ा सा इनके साथ थोड़े काम कीजिए ना, हमें थोड़ी सी डिटेल दे दें। ओ, बहुत सारे एरियाज में काम।
Like if you Mm-hmm. talk about in hospital setting, they are working in oncology department, they are working in neonatal department, even inborn बच्चे जो बिल्कुल infant होते हैं उनके साथ भी काम है, and they need therapies. इसके अलावा स्कूल्स में काम है, ठीक है, ओपीडी सेटअप्स में काम हो रहा है, सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इन सब पे काम है. इवन देयर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स एज वेल, लाइक स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, इसमें भी ओटी का बहुत बड़ा रोल है. इसके अलावा मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है. तो ओटीज कुछ जगह ऐसे काम कर रहे हैं कि दे आर वर्किंग इन स्कूल और दे आर वर्किंग इन स्पेशल नीड्स स्कूल, इवन मेन स्ट्रीम स्कूल्स. दीज टू आर डिफरेंट सेक्टर्स इन आवर स्कूल सेटिंग्स. एंड देन देयर आर हॉस्पिटल्स जिनमें काम हो रहा है सारे पेशेंट्स के साथ, इन पेशेंट्स के साथ भी, ठीक है. ऑन्कोलॉजी ठीक है. डिपार्टमेंट में बहुत काम हो विद इन्फेंट्स. एंड देन वी हैव लाइक सम ओपीडी सेटअप्स लाइक रिहैब सेंटर्स, उनमें काम हो रहा है, जैसे डाउ अच्छा, है, अभी आपने आईपीएमएआर है, कहा कि इसके विद अलावा इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के साथ थोड़ा सा अगर आप इलाबोरेट करते हैं कि किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं. there are multiple things with them as well. Like बहुत ओके. सारे disorders ऐसे हैं जिसमें हमें बाद पता लग जाता है कि like the child is special need, like CP है, spina bifida है, and then we have Downs है, ठीक है. तो कहते हैं ना कि अर्ली इंटरवेंशन as soon as you start, ठीक है. तो बच्चों के साथ भी बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं when they born, ठीक है, कि आई कांटेक्ट नहीं आ रहा, सकिंग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, इसके अलावा जो दूसरे रिफ्लेक्सेस है वो नहीं आ रहे. तो देन वी वर्क ऑन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, कि हम जो बर्थ वाइज जो जनरेट होने चाहिए, जो बच्चों के रिस्पॉन्स नॉर्मल होने चाहिए वो भी हो, ठीक है. तो उसके ऊपर फिर काम होता है, वो बहुत कन्वेंशनल तरीके से काम होता है. छोटे बच्चे का एक दो और है, टॉर्टिकुलाइटिस होता है जिसमें यहाँ का एक पूरा मसल टाइट होता है, उसमें बहुत यंग एज में जितना छोटा अच्छा. बच्चा होगा आप काम कर लो तो वो हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ग्रो करता जाएगा वो मसल उतना ज्यादा टाइट होता चला जाएगा, तो काम करना बहुत ठीक मुश्किल है. होता है. तो ठीक वी है. हैव वर्क, आई हैव वर्क during my final year. The ओके. child was just 40 years old and he came to me. So we have to work on this muscle on him. तो इन्फेंट के साथ कुछ डिफरेंट डिसऑर्डर्स है जिनके साथ काम करते हैं. इवन डाउन्स में भी काफी सारे पेरेंट्स जो हैं इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि जो बर्थ वाइज माइलस्टोन्स है जो कि एक एज के साथ फॉलो होते जाते हैं, तो वो उसी से स्टार्ट लेना शुरू करते हैं, ताकि वो बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सके कि वो माइलस्टोन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहां पे डेफिसिट नजर आ रहा है वहीं से काम शुरू कर दिया जाए, ताकि एज वाइज वो माइलस्टोन अचीव कर ही ले. बिल्कुल. ओके. ठीक है. तो अच्छा, मैं जैसे कि अभी आप मुझे बता रही थी कि कौन कौन से डोमेन्स में काम किया जा सकता है, तो आमतौर पे व्हाट इज अंडरस्टूड और व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को वही एसोसिएट किया जाता है स्पेशल नीड्स के साथ. आपने जिक्र किया मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी, तो थोड़ा सा हम मेन स्ट्रीम किड्स के साथ किन एरियाज पे काम करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में. आई थिंक वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. बेसिकली मेन स्ट्रीम स्कूल्स में दो तरह का काम हो रहा है. एक तो वो बच्चे हैं जिनके साथ कोई स्पेशल नीड्स केस नहीं है, वो मैं ये नहीं कह सकती कि दे आर ऑटिज्म, दे आर एडीएचडी, और आई कांट लेबल देम इन एनी ऑफ द ठीक है. लाइक, बट उनके साथ एकेडमिकली कुछ इशू हो रहा है, लाइक या कुछ चिल्ड्रन जो है वो एकेडमिकली अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, कि उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग इशू हो रहा है, ठीक है. कुछ इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी में भी फॉल करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है. उनके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनके काम को इजी बना देता है, ठीक है. मेन स्ट्रीम में एक तो ये काम हो रहा है. दूसरा ये होता है कि जो इंक्लूजन पे काम किया जाता है ना, कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को आप मेन स्ट्रीम स्कूल में जब ट्रांजिट करते हैं तो वो फिर बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं, ठीक है. उनका करिकुलम डिजाइन किया जाता है, लाइक द अदर चाइल्ड इज डूइंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर काउंटिंग फ्रॉम 1 till 100, बट द स्पेशल नीड विल नॉट बी एबल टू डू दैट. तो हम उसका करिकुलम उसकी एज वाइज उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्लान करते हैं. ये भी मेन स्ट्रीम स्कूल में काम होता है, एंड देयर आर मल्टीपल स्कूल्स हु आर वर्किंग ऑन इट. जरूरत होती है तो रिसोर्स टीचर्स को भी रखा जाता है, नहीं होती तो नहीं रखते. एंड उसका भी ये तरीका कार होता है कि रिसोर्स टीचर्स को आपने इनिशियली आपने ले लिया ऑन बोर्ड, एंड देन लेटर ऑन आप
जो रिसोर्स टीचर को है वो हटा दें और क्लास के साथ बच्चे को क्लास टीचर के साथ उसको इंगेज कर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर ये इशू ना हो और बच्चा जो है वो इंक्लूजन का पार्ट बन जाए और मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर इंक्लूसिव हो जाए। ठीक है, तो वो सारी बिल्कुल। चीजें अगर जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर हमें स्कूल की क्लासरूम की मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है, कि लाइक सिटिंग अरेंजमेंट्स करते हैं, इवन बुक्स के अंदर जी। चेंजेस करते हैं, कि लाइक ऑटिज्म के अंदर या एडीएचडी के अंदर अगर पिक्टोरियल तरीके से पढ़ाया जाए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, तो हम बुक्स के अंदर जो राइटिंग मटेरियल है उसको हाइड कर देते हैं और पिक्टोरियल मटेरियल ज्यादा रखते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए। इस तरह के डिफरेंट अडेप्टेशन है जो उनके साथ की जाती है, उनकी स्किल्स को, उनकी राइटिंग रीडिंग एबिलिटी को या अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। ठीक है। सादिया, आप सिंस यू इंक्लूजन पे आपका बड़ा फोकस है, ठीक है, तो बिफोर वी गो अ बिट फर्दर इनटू ऑक्यूपेशन, क्या कहना चाहिए, आपने किस तरह से नोट किया कि इंक्लूजन के बारे में क्या रिस्पॉन्स होता है आमतौर पे? ऑब्वियसली जब आप इंक्लूसिव सेटअप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसके अलग एक चैलेंजेस होते हैं, नॉट एवरीवन इज वेरी एक्सेप्टिंग, या थोड़ा सा इंक्लूजन समझाना भी आई थिंक समटाइम्स एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक क्लास में दो डिफरेंट बच्चों को बिठा दो, आपने प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन करनी होती है। तो बिल्कुल। किस तरह से आपने जो है ना नोट किए हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है? बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो इंक्लूजन कह तो रहे हैं, ठीक है, एंड पेरेंट्स को भी लगता है वो इंक्लूसिव स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन उनका जो सेटअप होता है, उनका तरीकाकार ये होता है कि उन्होंने स्टूडेंट को बुला लिया एंड देन दे जी। हायर अ रिसोर्स टीचर, ठीक है, एंड देन दे गिव देम अ कॉर्नर, ठीक है, क्लास वही है लेकिन वो कॉर्नर है उस बच्चे के लिए और उसकी रिसोर्स टीचर के लिए, ठीक है, विद इन द क्लासरूम इट्स अ सेग्रीगेशन, इट्स नॉट। इंक्लूजन तो तब है जब वो बच्चा आपके बाकी क्लास के स्टूडेंट के साथ बैठे, ठीक है, बिल्कुल। और वही क्लास टीचर जो सेम क्लास टीचर है उनको पढ़ाए, ठीक है, एंड द चाइल्ड विल एबल टू टेक दैट जो उसके लिए है, ठीक है, मतलब क्लासरूम की पढ़ाई ऐसी हो, इस तरीके से हो कि वो बच्चा भी कुछ लेकर जाए, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए दूसरा टीचर ना हो और ना वो सेपरेट कॉर्नर हो, ठीक है, इफ बिल्कुल। द चाइल्ड इज डूइंग हिज लर्न तो वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर कर सकते, ठीक है, इफ द चाइल्ड इज प्लेइंग तो वो बाकी बच्चों के साथ उसी तरीके मिल से सकता है। करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% वैसे ही बिहेव करेगा लाइक अदर चिल्ड्रन, बट डेफिनेटली। वो उनके साथ मिल जाए, ठीक है, वो अलग ही होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड इंक्लूजन, विच इज नॉट बिल्कुल। हैपनिंग है। कुछ स्कूल जो उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बच्चा जाए और पहले ही दिन सारे बच्चों के साथ बैठ के मिंगल हो जाए और क्लास टीचर भी आराम से सेटल कर ले। अगर इतना इजी होता तो ये टास्क चैलेंजिंग नहीं होता। बिल्कुल। डेफिनेटली। थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है, कि लाइक आई यूज टू से कि अगर नीड है रिसोर्स टीचर की इनिशियली तो होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस रिसोर्स टीचर के साथ पूरा दिन बच्चे को एक कॉर्नर में बिठा दिया, ठीक है। शुरू शुरू में आप हाफ एन आवर के लिए बच्चे को क्लास के साथ इंगेज करें, रिसोर्स टीचर को बाहर निकाल दें, द क्लास टीचर विल बी हैंडलिंग द चाइल्ड विद अदर ठीक क्लास, है। और द class teacher is handling only the child, and the resource teacher will take the charge for the class teacher for half an hour। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, प्ले टाइम में भी हो सकता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता दैट द ट्रांजिशन विल हेल्प, ठीक है, एंड देन रिसोर्स टीचर की इन फ्यूचर नीड नहीं होगी और फिर वो क्लास बिल्कुल। टीचर आराम से उस बच्चे को समझ भी लेगी और वो बच्चा भी बाकी स्टूडेंट के साथ मिंगल हो जाएगा। एंड ये बात बाकी बच्चों को समझाने की भी जरूरत है, ठीक है, कि दे विल नॉट डेफिनेटली। बी बुलिंग द चाइल्ड, दे विल हेल्प देम, कि वो बच्चा जो सीखने के लिए आया है, उनका हिस्सा बनने के लिए आया है, वो इजी हो। इवन पेरेंट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स कंप्लेन कर देते हैं स्कूल को कि आपने इसको बुला लिया है तो ये तो हमारे बच्चों को कुछ कर देगा एग्जैक्टली। या हमारे बच्चे कुछ एग्जैक्टली। सीख जाएंगे, ठीक है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं और इसके लिए क्लास स्कूल वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अगर कोई दूसरा पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल से पुल आउट कर लेगा तो वो भी उनके लिए एक चैलेंज है, तो वो ये ऐसा एग्जैक्टली। नहीं चाहते, ठीक है। तो देन दोज इंक्लूसिव स्कूल्स जो अपने आप को इंक्लूजन पे ला रहे हैं या जो ऑलरेडी हैं, उन्हें ये चीज गाइड करने की पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, कि कल को उनके यहाँ या उनकी फैमिली में या कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड डेफिनेटली। हमारी सोसाइटी तभी बन सकती है जब सब मिलके उस पे काम करेंगे। इंक्लूजन एक बंदे का काम नहीं है, वी नीड या इट्स पेरेंट्स, वी नीड बिल्कुल। एवरी स्कूल,
इवन द मेड्स ऑफ द कम्युनिटी स्कूल, एफर्ट, डेफिनेटली। एवरीवन। तो वो सब जब टीम एफर्ट बन के काम करेंगे देन वी विल गो फॉर द इंक्लूजन। इवन मेड्स होती हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग थोड़ी हाँ दी जी, जाती है इन बच्चों को डेफिनेटली। हैंडल करने की। तो बच्चा लाके उनको पकड़ा दिया जाता है, अब when the child needs to go to the washroom, maids doesn't know how to handle that particular child। वो खींच भी रही हैं उसको, जबरदस्ती लेके भी जा रही हैं। उसमें बिल्कुल। बच्चा के साथ जो अच्छा करने के लिए स्कूल भेजा होता है ना, इंक्लूजन पे काम करने के लिए, समटाइम्स वो और बुरा हो जाता है। ठीक है, ट्रू। कि वो कुछ ऐसे ट्रॉमास लेके घर जाता है कि पेरेंट्स अपने डिसीजन को गलत समझते हैं, दे पुल आउट देयर चाइल्ड टू दैट पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम स्कूल, एंड वो चाइल्ड एंड अप हो जाता है स्पेशल नीड स्कूल में या घर पे। तो बिल्कुल। ये कुछ अब चीजें हैं जिनकी अभी कमी है, एंड आई थिंक हम्म, कुछ कुछ इदारे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एज वेल, इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा सादिया, अभी जैसे कि आपने मेड्स की और वो वॉशरूम की बात की, तो आई रिमेम्बर आपकी काफी सक्सेस रेट है टॉयलेट ट्रेनिंग में। तो टॉयलेट यस। ट्रेनिंग भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से किस तरह से रिलेटेड है? वो उसी में आती है, कंसिडरिंग इट्स अ लाइफ स्किल। तो आपकी डिग्री की वजह से ही आप कहेंगी कि इसमें आपको इतना सक्सेस रेट हासिल है? बिल्कुल, डेफिनेटली डिग्री की वजह से है, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मैं देखती थी दूसरे बच्चों को फैमिली में। अच्छा, मुझे ठीक है। कभी भी ना बहुत बड़े बच्चे डायपर में घूमते हुए, मदर्स उनके पीछे भाग रही हैं उनको लेते हुए, मुझे थोड़ा इरिटेट करता था। ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपना बचपन देखूं, या मैं अपने भाई बहनों को देखूं, या अपने सराउंडिंग में कजन, अब उस दौर में जाके देखूं जब मैं बिल्कुल। 10 साल की होंगी, 12 साल की होंगी, और मेरे सराउंडिंग में जो बच्चे घूम रहे होते थे, तो वो इतना नहीं था, डायपर डिपेंडेंसी इतनी नहीं थी, बहुत ट्रू, कम थी। ट्रू। आई हैव सीन के बच्चे बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते थे, और वो बताते थे और वो भी चले जाते थे। ठीक है, डायपर्स ठीक की है। यूजेज नहीं। ठीक है, मेरी मदर से मैंने एक दो दफा पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि हम हार्डली यूज करते थे, एंड बच्चे ट्रेन हो जाते थे। और उस वक्त तो इतनी मशीनरीज भी नहीं थी, लाइक मदर हैज टू वर्क अ लॉट ऑन देयर ओन। बिल्कुल। ठीक है, मेड बिल्कुल। का इतना टाइम नहीं था। तो आई हैव जस्ट थॉट कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या डायपर्स ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। इन केस, तो बच्चे बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। लाइक आई मेट फ्यू पेरेंट्स वाइल वर्किंग, ठीक है, कि वो गांव से आते हैं, ठीक है, और स्पेशल नीड्स है, बाकी सारे इश्यूज अपनी जगह, बट हम्म। टॉयलेट ट्रेन्ड है। चलिए। ठीक है, बच्चा चल नहीं सक रहा, ठीक है, लेकिन बता हाँ। देता है कि उनके लिए मदर उठा के ले जाए। ठीक है, बिकॉज ठीक। काम मदर ने कर लिया है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होती है। ठीक है, जो हम्म। विलेज लाइफ की लेडीज हैं वो इसमें बड़ी एक्सपर्ट, बिकॉज दे डोंट यूज इट, दे डोंट हैव इट ट्रू, टू मच। ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो देन आई डिसाइडेड कि इस डिपेंडेंसी को अगर रिड्यूस किया जाए, जिस तरह पेरेंट्स पहले अर्ली बच्चों को ले जाते थे, उस तरीके से वॉशरूम लेके जाया जाए, तो वी कैन एबल टू अचीव इट। ठीक है, मैंने अपनी फैमिली में वो जो बूढ़ी खवातीन थी उनसे पूछा कि 10-10 बच्चे, 11-11 बच्चे थे भाई आप लोगों के, और आप लोगों ने इतनी मुश्किल टास्क को कैसे अचीव किया, जो कि आजकल इतना मुश्किल है कि वी नीड एन एक्सपर्ट टू ट्रेन, कि ट्रेन, कैसे ठीक है, करें। बिल्कुल। एंड मैं तकरीबन, मुझे लगता है मैं डेली एक पोस्ट पढ़ती हूँ फेसबुक पे, और अच्छा। इट्स नॉट अबाउट द स्पेशल नीड्स, हाँ जी। इट्स अबाउट एवरी चाइल्ड। मदर यूज्ड टू से दैट कि इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क, बच्चे को नहीं सिखा पाते, बच्चा बताता नहीं है, इट्स टू डिफिकल्ट, हाउ टू टेक इट द नाइट, एंड एवरीथिंग आई रीड अबाउट इट हम्म। डेली। तो उन्होंने कहा कि हम तो जब बच्चा 40 दिन का होता था तो उठा के सिंक में ले जाते थे, बिठा देते थे और करवाते थे, थोड़े टाइम में बच्चा, लाइक एट द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता था, उसमें बच्चों को मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, सब कुछ होता था। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा भी होना चाहिए, जी, ठीक जी, है, जी। ठीक है, बिल्कुल। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आई ट्राई टू सर्च इट अबाउट ऑन गूगल, देयर इज अ मेथड एलिमिनेशन कम्युनिकेशन, बहुत डेटा है गूगल पे उसका, बहुत सारी वीडियोज हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड इज यूजिंग दिस एज वेल, एंड देन आई ठीक है। ट्राई टू अडेप्ट एंड आई यूज्ड इट। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं काम करती थी उन पे भी मुझे बड़ा अच्छा रेट मिला। मैंने अपनी बेटी के साथ करना शुरू किया व्हेन शी वाज 3 मंथ्स ओल्ड, एंड ठीक है। ऑनेस्टली आई हैव अचीव्ड इट, माय गोल।
around 9 months of her age. अच्छा, So माशाल्लाह। I can say ये सिर्फ बात नहीं है, पहले मैं बात करती थी, नाउ आई कैन से दैट आई हैव डन एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑन इट कि दिस इज पॉसिबल इफ ठीक यू है। कैन डू इट। हाँ, तरीका है। ये कुछ मिथ्स भी हैं कि 15-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में बच्चे को वॉशरूम लेके जाओ, 10-10 मिनट बिठा के रखो। हाँ नो, जी। मैंने कई दफा लिखा है फेसबुक पे, मैं रिप्लाई करती हूँ उन कमेंट्स पोस्ट का, कि कौन सा ठीक बच्चा है। हर हाफ एन आवर में पी कर सकता है। तो जस्ट थिंक, थोड़ा सा सोच के काम करें, या जनरल ट्रेनिंग्स पढ़ें, नेट पे रिसर्च करें। इतना ठीक है। मुश्किल टास्क नहीं है। थोड़ा कंसिस्टेंसी ठीक है। चाहिए। कुछ पेरेंट्स थक जाते हैं, 2 महीने बाद छोड़ दिया, अगले 2 महीने बाद ट्राई, बिल्कुल फिर ट्राई बिल्कुल। किया, फिर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 4 मंथ। ठीक इनकंसिस्टेंसी है। भी टॉयलेट ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। एंड देयर आर अदर इशूज एज वेल, वी कैन डू अ सेशन ऑन particularly toilet training, inshallah. Definitely in the future, inshallah. Which will be very helpful for parents. Definitely. Before I ask the further questions, मैं थोड़ा सा comments को highlight कर लूँ. Huma Binti Yusuf is saying, so proud of you, Dr. Sadia. Muhammad Tariq is saying, great and informative session. Mudassar Abbasi is saying, Assalamu alaikum, ma'am. I am student of physiotherapy, 2 years diploma program. Mudassar, thank you for sharing that. अगर आपका कोई question हो, you can highlight it. And another comment he has said कि मैम tell me about CP child case, कितना टाइम उनको एक्सरसाइज करना चाहिए? हम्म द थिंग इज, सीपी चाइल्ड केस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। इट डिपेंड, आपके पास बच्चा कब आ रहा है। ठीक है, सीपी के जो भी स्टेजेस हैं उसमें वो कितना सिवियर है, आइदर उसकी टोन नॉर्मल है नहीं है, ठीक है, वो स्पेस्टिक टोन में है, वो फ्लैसिड टोन में है, वो कॉर्ड है, वो टाइप्लेजिक है, मतलब जो भी उसके इश्यूज हैं, वो एपिटॉइड है। सीपी के अंदर भी तो बहुत बड़ी रेंज है ना, जिसको आप जज करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि सीपी अगर आपको बहुत पता लग जाता है, द चाइल्ड इज जी। क्वाइट यंग, तो मैं कहूंगी इनिशियल बेसिस पे आपको जो भी रिहैब सेटअप मिलता है आप वहां जाएं और उसकी थेरेपी शुरू करवा दें। एंड आई विल से फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दोनों, इवन स्पीच की नीड है अगर आपके बच्चे को, तो स्पीच, जितनी, ये सारी थेरेपीज अगर आप एक वक्त में स्टार्ट कराएंगे ना, तो आप जल्दी निकल जाएंगे इस सेटअप से। ठीक है। ठीक है, कि आप एक वक्त आएगा, आपका बच्चा इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा, या आप खुद इतने ट्रेन हो चुके होंगे कि फिर आगे आप कैरी ऑन कर सकते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स थिंक अभी पहले शुरू में फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिर जब बच्चा चलना सीख जाएगा फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाएंगे, और अगर उस दौरान उनको लगा अब बच्चा 5 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, तो अब स्पीच के लिए जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। तरीकेकार सही नहीं होता, इसमें बहुत देर हो जाती है, उनका लाइफ टाइम उन बच्चों की सिर्फ थेरेपी ही चल रही होती है। तो इफ यू आर स्टार्टिंग, तो स्टार्ट साइमल्टेनियसली दीज थ्री डोमेन्स। ठीक है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के साथ बिहेवियर इशू हो तो आई वुड से बिहेवियर थेरेपी के लिए भी जाया जाए। ठीक है, जितनी पूरी मल्टी जो रिहैब टीम है, जब वो साथ में काम करती है तभी काम नजर आएगा। पूरी ट्रू। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को काम करते, जब काम करेगी एक बच्चे के ऊपर, तो हर डोमेन से काम हो रहा होगा ना, तो वो, क्योंकि इनके अंदर ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल। पर्टिकुलर डिफरेंट एरियाज है ना, वो एनहेंस होते हैं हर जगह जाके, तो रिजल्ट का जो रेट है ना वो तेज हो जाता है। तो आई वुड ठीक नॉट है। से कि कोई टाइम लाइन में एक्सरसाइज कराने की। हाँ, जब आपको थेरेपिस्ट जिसके पास भी आप लेके जा रहे हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर केस, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। ट्रू। डेफिनेटली। So Mudassar Abbasi, I hope your question is answered. अगर आपको further कुछ पूछना हो या any confusion, please mention in the comments. So Sadia, like we have talked about younger kids so far, and okay, जो आप हमने ऑलरेडी कन्वर्सेशन कर ली है उससे रिलेटेड, बिकॉज एक दो क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स में, तो आई थिंक वील टेक दोज फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू ओल्डर चिल्ड्रन. Mamuna Bukhari is saying, my child is autistic, 3 years old. He starts removing his pants anytime without any reason. He is not potty trained and uses diaper. तो उस पे कोई comment आप देंगी सादिया, since she has not asked a specific question. ये स्टार्ट रिमूविंग हिज पेंट्स, तो आपने उसे ड्रेसिंग के लिए ट्रेन करना शुरू किया है,
ये आपने कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया कि व्हाई ही स्टार्टेड, आपको क्या लगता है, ठीक है, कि क्यों स्टार्ट कर दिया है उसने, और वो मतलब कुछ पैरामीटर्स होंगे कि जिसकी वजह से हम्म। वो पैंट आइदर आपने उसको पैंट रिमूव करना सिखाया है न्यू न्यू, और वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है कि वो कहीं पे भी रिमूव कर लेता है, ठीक है, फिर उसको गाइड करने की जरूरत है कि पैंट्स या शर्ट्स रिमूव करने के लिए वॉशरूम इज द आइडियल एरिया, ठीक है। आई यूज टू गाइड पेरेंट्स कि जब बच्चा आपका 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का है, ठीक है, तो तभी से कोशिश करें कि आप उसका ड्रेस रिमूव करने के लिए उसे वॉशरूम लेके जाए, ठीक है। इवन इफ यू आर चेंजिंग द डायपर, ठीक है, आप कोशिश करें आप वॉशरूम लेके जाके उसके कपड़े धो, बिल्कुल। ठीक है, तो वो बच्चा लर्न कर जाता है कि मैं कपड़े कहीं और रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। एंड देयर आर ठीक है। मदर्स एंड फादर्स चेंज देयर ड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके लिए भी मैंने कई दफा गाइड किया है कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है तो दे कैन अंडरस्टैंड, उनकी समझ होती है, या तो आप वो काम ना करें जो आपको उनको ट्रेन करना है, ठीक है। जैसे आपको उनको ट्रेन करना है ना, बस आपने वैसे ही खुद करना है, वो कॉपी करते जाएंगे देख देख के, ठीक है। तो इफ द एग्जैक्टली। चाइल्ड इज डूइंग दिस, try them, let them know that your parents are not doing it anywhere in front of anyone. If you want to change that dress, if you want to remove your pant, you should go to the washroom and do it. बिल्कुल। You should hide yourself and do it. Don't do it in front of others, ठीक है। आप एग्जैक्टली। सिखा सकते हैं, स्टोरीज बना के सिखा सकते हैं कि देखो भाई है, बहन है, दे डोंट डू इट, ठीक है, तो यू शुड डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रेन किया जा सकता है। एंड स्टार्ट डूइंग इट कि जब आप चेंज कर रही हैं उसके कपड़े किसी भी वजह से, या उसे वो अगर टी टॉयलेट ट्रेन नहीं भी है, डायपर चेंज करिए, तो स्टार्ट टेकिंग योर चाइल्ड टू द वॉशरूम, वो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस चीज को लेकर। डेफिनेटली। एंड बच्चों में तो वही बात है ना, इमिटेशन की। अगर वो जाहिर सी बात है, अगर घर के ही अफराद को वो देखेंगे बिहेव करते हुए, तो उन्होंने घर के ही लोगों से सीखना है। तो वो उसी तरह फिर हाँ, मतलब अडॉप्ट करेंगे वो वाले बिहेवियर। क्योंकि ये ठीक बहुत है। कॉमन है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो मदर यूज टू टेक देम विद देम टू द वॉशरूम, कि उन्हें शावर दिया, खुद भी साथ ले लिया, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है क्योंकि ये बहुत इजी होता है, ठीक है। और मदर बिल्कुल। को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को उसके पास संभालने के लिए दिया जाए क्योंकि बच्चा तंग करेगा, ठीक है, बिल्कुल। एंड दे वांट टू गो, तो वो अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। बच्चे को दूर नहीं रख सकते अपनी आंखों से, तो वो बच्चे के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ठीक है। वो उनका अपना एक चैलेंज है, लेकिन इस वजह से बच्चा जो लर्न कर रहा है वो भी एक जी। इशू है। तो यू हैव बिल्कुल। टू ट्रेन। डायपर चेंज करना बेड पे लेटा के जरा आसान है, ठीक है, वॉशरूम में ले जाके थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेकिन ये मुश्किल कि है, छोटी बिल्कुल। सी ट्रेनिंग आपके आगे का मसला हल कर सकती है। हाँ जी। वो अभी की जो आपको जो चीज थोड़ी सी आसान लग रही है, वो बाद में जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल। ठीक है। तो ओके, सादिया, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने टॉडलर्स की और थोड़ी सी यंगर एज की बात की है। इफ यू मूव ऑन टू टीन एज, उसमें व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट? टीन एज पे लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल नीड चिल्ड्रन, हम्म। जैसे मैं अभी 2-3 बच्चों को देख रही हूँ, दे हैव अ वेरी बिग इशू ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है। देखिए, हर बिल्कुल। बच्चा जब ग्रो करता है तो उसकी मेंटल एज भी ग्रो करती है, उसकी सोशल नीड्स भी हैं, उसकी इमोशनल नीड्स भी हैं, ठीक है। दे बिल्कुल। वांट टू सोशलाइज। हमारे अगर अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि एक तो लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं स्पेशल नीड्स को, पेरेंट्स बच्चों को, टीन एज बच्चों को बाहर ले जाना ज्यादा अवॉइड करते हैं कंपेयर टू छोटे बच्चों, तो वो होम बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो उनका जो पूरा दिन है वो फोन, लैपटॉप, इन सब चीजों के साथ ज्यादा गुजरता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। गोइंग बिल्कुल। एनीवेयर। हमारे पास पार्क नहीं है ऐसे जो उनके हिसाब से अडेप्ट हुए हुए हों कि वो वहां जा सके, ना रेस्टोरेंट्स हैं, ना सिनेमाज हैं, मतलब कोई उनके लिए इंटरटेनमेंट एज सच वैरायटी नहीं कि वो उसको एंजॉय कर सकें। वोकेशनल सेंटर्स भी बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली। जिनमें वो कुछ अपनी स्किल्स को लर्न कर सकें, ठीक है। आई हैव वर्क विद फ्यू, और उनके साथ ये हुआ है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बड़ा साथ दिया। एक हम्म। स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने पढ़ा, एंड मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, एंड बिल्कुल। माशाल्लाह वो अब अपना काम कर रहे हैं खुद। माशाल्लाह। ही वाज अ टीनेजर। अच्छा, जब उन्होंने काम शुरू किया
तो फ्रेंडशिप्स भी हो गई, लोगों से बातें भी हुई, सोशलाइज भी हो गए, कॉन्टेक्ट्स भी बन गए, तो ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो मैं ठीक है। पेरेंट्स को यूजुअली गाइड करती हूँ कि फॉर देयर टीनेज चिल्ड्रन दोस्त ढूंढने पे नहीं मिलेंगे आपको इतने आसानी से। इट्स नॉट इजी। ट्रू। आप किसी को नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे को ना एक अच्छा टाइम दो। कोई 4 दिन देगा, 8 दिन देगा, 10 दिन देगा, बस इससे ज्यादा वो कौन अपना कमिटमेंट वक्त दे नहीं सकेगा, वो होगी, भी इतनी बिजी एग्जैक्टली। लाइफ। ठीक है, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है, हमारे इधर एक इशू ये आता है कि हम बच्चे को ना छोटी एज से सिर्फ पढ़ने में लगा, ट्रू। ऑल्दो वी नो कि वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन शायद कोई आर्टिस्ट बन जाए, कोई स्पोर्ट्समैन बिल्कुल। बन जाए, कुछ और अच्छा कर सकते हैं वो। ठीक है, कोई शेफ बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो उनकी अपनी अच्छी स्किल है ना, हम उसको नहीं इनहेंस करते। जो नहीं आता ना, उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो बच्चा ना ना कल दोस्त बना सकता है, ना कोई या अपना करियर बना सकता है, कुछ भी नहीं कर पाता। टीन एज में आके वो बच्चा और मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों के एग्जैक्टली। साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं। तो बेहतर ये होता है, इवन जिन लोगों ने नहीं भी किया, आई वुड से कि आपके बच्चे को कोई चीज पसंद होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, उस पसंदीदा चीज को आप और बढ़ा दें और अच्छा कर दें और उसके लिए पॉलिश कर दें। म्यूजिक पसंद है, गो फॉर इट। एक्टिंग पसंद है, गो फॉर इट। जो आपके बच्चे को पसंद है आप वो करके उसको उसमें बढ़ा दें, क्योंकि वो उसी में एक्सेल करेगा और उससे रिलेटेड उसको सब मिल जाएंगे। तो उससे बिल्कुल। रिलेटेड उसको हर तरह का बंदा मिलेगा और उसकी दोस्ती हो जाएगी। जो टीन एज के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि वो सोशलाइज नहीं कर सकते, तो उनकी ठीक है। सोशलाइजेशन ऐसी ही हो। एंड ठीक उसके है। लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके, कुछ अडेप्टेशंस करके उन्हें अपने साथ, अगर हर इंस्टीट्यूट एक एक बच्चा भी अलाउ कर देता है अपने पास कुछ सिखाने के लिए, तो वी वुड बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी। एग्जैक्टली। हर बिल्कुल, और इसी इंस्टीट्यूट तरह एक चेंज बच्चा। आएगा बस। हाँ, एक किसी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है, आगे तो फिर डेफिनेटली वंस द प्रोसेस इज स्टार्टेड तो आगे चेंजेस भी आएंगे। तो ये आपने हाँ क्योंकि बताया स्पेशल नीड्स के टीनेजर्स के बारे में। तो an occupational therapist works with both special needs and mainstream. तो mainstream areas में किस तरह से जो है ना an occupational therapist can help? यूजुअली जो बुलिंग केसेस हैं वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं। ठीक है, सेल्फ मोस्टली एस्टीम, बिहेवियर बिल्कुल। थेरेपिस्ट मोर विद देम। ठीक है, बट ठीक इफ है। वी गेट अ चांस एंड इफ वी टेक दोस चाइल्ड, तो हम सोशल स्टोरीज के साथ, रोल प्लेइंग के साथ, ठीक है, उनके उस पर्टिकुलर इशू जिसको वो फेस कर रहे हैं उसके अंदर जाके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्राउड को देख के बड़े घबरा जाते हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। तो उन्हें उसकी थोड़ी थोड़ी करके ट्रेनिंग देना, कि लाइक मिरर के सामने उन्हें बात करना सिखाना, उन्हें टॉपिक के सामने बोलना सिखाना, आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाना, एक छोटा सा क्राउड क्रिएट करना। ठीक है, ठीक कि है। जो उस वक्त उन्हें इम्पैक्ट करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी लाना, स्टेप बाय स्टेप उनको ट्रेन करना उस चीज के लिए कि वो लर्न कर लें। आई हम्म। एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग, यूजुअली होती है ठीक है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ, कि वो जब इतने सारे लोगों के सामने आके खड़े होते हैं तो वो बोल नहीं पाते। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो स्टेज उससे फ्राइट भी, घबराते जो हैं। स्टेज ठीक है, फ्राइट होती है एंड वो वो इसमें पीछे काउंट हो तो सकती है। बहुत। किस पे? स्टेज फ्राइट जो होता है कि मतलब आप प्रिपेयर्ड हो, यू थिंक यू आर रेडी, हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, स्टेज ये पे जाके आप। स्टेज फ्राइट, डेफिनेटली इट्स अ स्टेज फ्राइट। एंड ये ठीक है। होता है, मैंने अपने साथ काफी स्टूडेंट्स को देखा है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है अपनी क्लास के, इवन एक्सपर्ट्स, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट, एंड स्टेज फ्राइट था उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि ठीक। वो हमेशा रहा, माशाल्लाह खत्म हो बिल्कुल। गया, लेकिन था। तो वो उन्हें अपने आप को उस ट्रेनिंग पे लाना पड़ा, सीखना पड़ा, एंड दे एबल टू कोप इट अप। तो हाँ, कुछ ठीक। चीजें हैं स्टूडेंट्स को, जो टीनेजर्स हैं उनको कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज सिखानी पड़ती हैं, कि इफ दे आर इन दैट ठीक है। पर्टिकुलर इशू, so they need to cope up with this and they are able to get it। तो उसके अंदर ठीक है। रोल मेन स्ट्रीम के साथ इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। बहुत कम होता है, जरूरत पड़े, हमारे माशरे में नहीं है इतना ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल मेन स्ट्रीम के साथ। वेस्ट वर्ल्ड में है डेफिनेटली, यहाँ पे स्पेशल ठीक नीड्स है। को नहीं पता होता यूजुअली कि हु इज ओटी। तो
बाकियों के साथ क्या कहें, लेकिन हाँ, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट कि मेरे अलावा जितने ओटीज होंगे वो अपनी पूरी कोशिश करते होंगे कि उनका इशू रिजॉल्व किया जाए. ठीक है, definitely. I'm just gonna read a few comments now. Um, Mohammed bin Yusuf is saying, वो जो पीछे हम CP की बात कर रहे थे, no timeline in CP, but yes, significant figures can help creating miracles. If someone follows the right therapeutic process, then it works. Doctors and family members. Again वही बात है कि प्रोफेशनल्स भी काम करें और घर वाले भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दें. और आपने जो अभी घर वालों सोशलाइजेशन से की भी. बात. जी. हम्म. No आ, socializing of special needs children, right, Dr. Satya? Our environment and communities do not accept these children, and parents need to come forward and talk for their children. क्या कमेंट करेंगे yes, आप? बिल्कुल. आई नो दिस लेडी हु इज कमेंटिंग. अच्छा, ठीक है. मैं उनकी बात को और उनकी बात के मतलब को दोनों को समझ पा रही हूँ. ठीक देखिए, है. है हमारे इधर ये चीज है कि कम्युनिटी नहीं एक्सेप्ट करती, एंड समटाइम्स हर पेरेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, हम्म. कि वो लेके चला जाए, बात कर ले, सबसे लड़ ले. नहीं है, हमारा हर पेरेंट ऐसा नहीं है, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है. तो जो बिल्कुल. है वो दूसरों को अपने साथ लेके चले, उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करें, ठीक है. नहीं कर हम अपने बच्चों को नहीं भेजते ना उन आम बच्चों के साथ, हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे जी. कुछ उल्टा सीख जाएंगे, इनको कोई कह देगा कुछ, क्योंकि हम तो सीधा साइको या पागल लेबल करने के आदी होते हैं ना. ट्रू. तो ये एक इशू आता है हमारे इधर. लेकिन जो जानते हैं, मैं कहूंगी वो आगे बढ़े, और जो नहीं जानते, अगर वो कुछ नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं कर सकते, तो आप उससे बुरा ना करें, ठीक है. आप चुप हो जाए, आपको कुछ नहीं पता तो फिर आप चुप हो जाए, ठीक. या. मुश्किल है, लेकिन जहां इतना पहुंचे कि आज ओटी को लोग जानते हैं, आज स्पेशल नीड्स के इश्यूज को लोग समझते हैं, पेरेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, थेरेपीज का इम्पैक्ट उन्हें समझ आता है. तो एक वक्त ऐसा भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, कम्युनिटीज एक्सेप्ट करेंगी हर चीज को. इंशाल्लाह. होता है, चेंजेस आते हैं, तो ये चेंज भी आ जाएगा. आज नहीं है तो कल आएगा. और जो जिन्होंने कमेंट किया और जो बाकी और लोग हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो सब भी काम कर लेंगे ना थोड़ा, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा नहीं तो 50-60% तो चेंज ले ही आएंगे. इंशाल्लाह. डेफिनेटली. डेफिनेटली. Sadhya, Yasmi Nigat is asking, please explain role of OT for sensory integration. हम्म. ओटी का सेंसरी इंटीग्रेशन में मैं कहूंगी ओटी का टूल है एक बहुत बड़ा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी. ठीक है. बेसिकली ऑटिज्म है, एडीएचडी है, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन टर्म्स भी हैं. आई एम नॉट जी. सेइंग सेंसरी या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर सिर्फ इन्हीं दो केसेस में है. देयर आर अदर केसेस एज वेल जिनके अंदर सेंसरी डिसऑर्डर्स आपको नजर आते हैं, ठीक है. ठीक है. एंड उसको डिसेंसिटाइज करना या उन एरियाज पे उन नीड्स को प्रॉपर थ्रेशोल्ड के साथ लाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. बिकॉज अगर मैं बात करूं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है क्या, एक लेमन टर्म में बात करूं, जी. तो आपका बच्चा एक छोटी सी चीज गिरने पे भी उस साउंड को ऐसे महसूस करेगा जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. ही विल पुट हिज हैंड ऑन, मतलब ऑन ईयर्स, कि बहुत जोर का शोर है, ठीक है. बिल्कुल. ठीक है, ओके. जिनको टेक्सटाइल की नीड बहुत ज्यादा है, वो हर बच्चे को हक कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे बच्चे स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं होते दूसरे बच्चों के लिए, बच्चे घबराते हैं बिल्कुल. उनसे, ठीक. इनफैक्ट पेरेंट्स भी कब तक बच्चे को पूरा दिन तो नहीं हक करके बैठ सकते, इट इज नॉट एग्जैक्टली. गुड फॉर देम. एग्जैक्टली. बच्चे को बड़ा भी होता है, ठीक है. इवन उन्हें इतनी आदत होती है, वो दीवार को पकड़ पकड़ के चल रहे होते हैं, उन्हें हर वक्त सेंसरी नीड होती है, ठीक है. तो उन्हें कुछ ना कुछ टच, टेक्टाइल सेंस मिलता रहे, टच मिलता रहे. अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ, स्मेल की कुछ बच्चों को आदत होती है, वो परफ्यूम उठा के चीजों को, डिफरेंट चीजों को स्मेल करने की आदत होती है उन्हें, ठीक है. तो ये जितने भी आपके सेंसरी एरियाज हैं, ठीक है. अच्छा, कुछ के अंदर उल्टा भी होता है कि उनका थ्रेशोल्ड बहुत डिफरेंट होता है. अब जमीन पे पाँव नहीं रखना, कुछ महसूस नहीं होना चाहिए, कपड़े भी नहीं पहनने, ठीक है, इतना हाँ भी जी. बर्दाश्त नहीं है, ठीक है. तो दीज आर इशूज. तो उनके अंदर जो है ना, वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है जो कि थेरेपिस्ट करते हैं. मोस्टली डिफरेंट रूम्स डिजाइन होते हैं उनके लिए,
उसमें ठीक लाइटिंग्स है। की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टेक्सचर्स की जरूरत पड़ती है, टैक्टाइल सेंसरी नीड, कुछ ब्रशेस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक विल-बार्जर ब्रश प्रोटोकॉल है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, ओटीज बहुत यूज करते हैं कॉमनली। जी जी। देयर आर डिफरेंट, हमें स्विंग्स की जरूरत पड़ती है वेस्टिबुलर इनपुट के लिए, एंड देयर आर डिफरेंट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का पूरा एक डिफरेंट सेटअप होता है जो कि आपको क्रिएट करना होता है, एंड देन यू अप्लाई सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर नीड, जो भी उसकी है उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। ठीक है। ठीक। एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे रोल, एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई वर्क, ठीक है, ओटीज का ही है सही मायने में। देर आर नो एनी अदर प्रोफेशनल जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम कर रहा हो। ये ठीक बेसिकली है। ओटी का ही टूल है। ठीक। वी हैव अनदर कमेंट। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं बात में बंद होता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आई डोंट थिंक आई कैन रीड दिस। Sadia, if you can complete the sentence. जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं बात में बंद होता हूँ, यानी घबराहट क्यों होता है? आई थिंक ही हैज Okay, सम एंजाइटी काइंड ऑफ। ठीक है। Okay, okay. So, Saif Rahman, if you could like आपका जो भी है इसको थोड़ा सा अगर आप elaborate कर दें तो maybe then Sadia can help you better. Thank you. So, Sadia, we talked about kids, we talked about youngsters, teenagers. Let's enter the adult life. उसमें how can an OT help? Are you talking about older patients or middle aged people? Uh, say like 20, late 20s, early 30s. Late 20s, early 30s. ओके। जी। इट डिपेंड्स, मोस्टली उनकी वो प्रोफेशनल लाइफ होती है जो हर बंदे की स्टार्ट हो चुकी होती है, कि दे नीड टू अर्न समथिंग, दे नीड टू ग्रो फॉरवर्ड, they need to go for any profession, they are going into relationships। तो ये वो वाली लाइफ है सबकी ही। आ, हम्म। तो उनके उस एरिया के इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स के, ठीक वो है। नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं बना पाते, नहीं कर पाते, या ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, ग्रीव्स हैं, ठीक है। ट्रॉमास हैं। ठीक है। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो किसी ट्रॉमा का शिकार हो गए और अब मजीद True. ग्रो नहीं कर पा रहे, एक्सेल नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो उनकी उसके हिसाब से थेरेपी होती है, एंड साइकोलॉजिस्ट कैन डू बेटर इन दीज मैं भी केसेस। यही पूछने लगी थी कि मतलब करते हैं। तो जो इसमें ये वाला एज है तो इसमें अगर ऑब्वियसली गॉड फॉरबिड अगर किसी फिजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं जिसमें ज्यादा वापस एक्सरसाइज की जरूरत है तो उसमें वुड यू से कि एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दे वर्क विद देम? डेफिनेटली दे वर्क विद देम, इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी उसमें साथ साथ हो रही होती है, क्योंकि जब वही कोई जो भी आप कह रही थी इंसान मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, दोनों मिलके काम करें। डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, और इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी ना थोड़ा सा उस वक्त जो अपनी काउंसलिंग एरिया है, बातें करने जी। का जो उसका आर्ट है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन दैट पर्टिकुलर एज। Like if I ठीक है। share my one of my case, he was 28 years old or 30 years old, and he got a virus and he got paralyzed his whole body। अच्छा। तो लाइक उससे लगा कि उसकी लाइफ वहां एंड हो गई, बिकॉज ही ठीक वॉज है। मैरिड। तो वो अब अपनी वाइफ के साथ एक रिलेशनशिप कैरी नहीं कर सकता था। ठीक है। उसके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। उसे ऐसा फील होता था कि ये उसकी एज है कि वो उनके लिए कुछ करे, बजाय उनको उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा। ठीक है। कि उन्हें जी। एक अटेंडेंट रखना पड़ा, इस चीज में आपको अच्छा नहीं लगता, इस एज में आप सबके लिए कुछ कर रहे होते हो, और ये एक ऐसी एज है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर बना रहे होते हो, सोच रहे होते हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है, ये एक टारगेट है, एंड अचानक से आप इतना पीछे चले जाओ कि आप कुछ भी ना कर सको। तो ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, लोगों की विल खत्म हो जाती है, दे डोंट वांट टू लिव एनीमोर। यूजुअली जो सुनने को मिल रहा होता है कि अब इससे आगे क्या, अब ठीक होते होते तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, और हम वैसे तो हो नहीं पाएंगे, तो आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ। यूजुअली उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स और ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती हैं। तो ओटीज उसके अंदर सक्सेस केसेस हैं,
उसको शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे एक ही डिसऑर्डर के बहुत सारे लोग, जिनकी जो अचीव कर चुके, जो ठीक हो चुके, वो ज्वाइन करते हैं, उनके साथ सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। सोशल ग्रुप्स का उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं उसके अंदर। ठीक है, इन चीजों को थेरेपीज डेफिनेटली काउंट। पेरेंट्स, अगर कोई स्पाउस है तो उस स्पाउस को बहुत ज्यादा आपने engage Okay. करना है, किसी के बच्चे हैं अगर तो उनको engage करना है। ये जो चीजें होती हैं ये स्कूल से गाइड किया जाता है कि दीज आर द पीपल हु वांट टू बी बेटर, तो उनके लिए वो अपने आप को आगे लेके चले और सीखे। हाँ, समटाइम्स किसी का कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है और वो किसी एक्टिविटी की वजह से या किसी बिजनेस की वजह से नहीं कैरी जी। कर सकता, तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि कोई एडेप्टेशन के साथ, कोई कोपिंग स्किल्स के साथ, या अगर कोई और पॉसिबल ऑप्शन है जिसको नहीं कैरी किया जा सकता तो कोई दूसरा ऑप्शन उनकी लाइफ को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। ठीक है। इसके अंदर फिर वो रोल आता है। बिल्कुल न्यूरो ठीक, बिल्कुल के अंदर इस पे काम किया। ठीक है सादिया। तो फाइनल डोमेन, द जेरियाट्रिक पेशेंट्स, उसमें किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का व्हाट इज द रोल फॉर देम, वो हमें जो है ना फाइनली एक्सप्लेन करते हैं आप। आ, आ, अजान हो रही है ऐसी आवाज। इट इज, मैंने इसलिए माइक भी म्यूट किया हुआ था, so it is just about to finish. ओके, इट्स फाइन। हम्म, तो जीरियाट्रिक्स के साथ वैसे आई लव वर्किंग विद देम, बहुत काम किया मैंने और बहुत इंजॉय किया उनके साथ काम करना। अच्छा, उनके साथ ना ज्यादातर उन्हें सिखाया जाता है, एक तो मेंटेनेंस पे काम होता है उनकी कि हम ये जीरियाट्रिक्स में ना प्रोग्नोसिस रेट कोई बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, हम्म। ये एक बहुत कॉमन है क्योंकि हम या डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, डीजेनरेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, तो उसके या अंदर प्रोग्नोसिस हमें अच्छा नहीं मिलता। लेकिन हम मेंटेन कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी जितनी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉल इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, तो हम जी। उनकी अडेप्टेशन घर में करते हैं, हम रेलिंग्स लगा देते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इस तरीके से उनके कामों को इजी कर देते हैं, उनकी एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। ठीक है, हम्म। ऐसे प्रोसेस उनको सिखाए जाते हैं अगर वो खुद काम कर रहे हैं तो। ठीक है, बिल्कुल। उन्हें और वॉशरूम में जैसे अगर कोई, हाँ बोले। मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और एडाप्टेशन, तो आप लोग एक तरह से to like make them feel कि they're not completely dependent on another person for help, but still you give them that little hope of independence कि okay, I am still in control, you give them that. हाँ, बिल्कुल इवन ठीक है। ऑनेस्टी बेसिस मैं जो कहूँ ना कि जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट है ना, उनको जी। अगर आप सिर्फ ये एक चीज दे देना ना कि वो हुक्म चला सकते हैं। ठीक, आप उनको खाली ये दे दे, वो समझे उनकी बीमारी भाग गई। ठीक है, जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो एक पूरी लाइफ जी चुके हैं। ठीक है ना, अब उनसे ऐसे कराया जाए कि वो डिपेंडेंट है या उन्हें हर कोई चीज आके बोल रहा है, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, True. उन्हें अच्छा लगता है कि उन्होंने सारी जिंदगी जिस अपनी अपनी एक अपनी बात के साथ जो जी है ना, वो रहे, जी। उन्हें वो चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप कोई उनको दे सके ना तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इफ यू जस्ट गिव देम योर ईयर टू जस्ट लिसन देम, दे विल या बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे, आपकी सारी बात मानेंगे। उसके बाद आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, उनके उनको जैसे बूढ़ों को ना थोड़ा सा डील करने का तरीका एक ट्रिक है। बेसिकली हम कहते हैं ना, बच्चा बूढ़ा बराबर है, ये एक बहुत कॉमन जी जी कहा जी, जाता है। बहुत कॉमन सेइंग हाँ, है, इस बिल्कुल। बच्चे को आप डांट के पढ़ सकते हैं, बड़ी एज पे ये नहीं कर सकते बस आप। ठीक बाकी है, लेकिन बस तरीका कहीं ना मैनेजमेंट और कहीं तरीका, ऐसा ही चलता
सही हाँ, सही चल सही। रहा होता है, बिल्कुल चल रहा होता है। आपने उन्हें मनाना भी पड़ता है, आपने उन्हें पैम्पर भी करना पड़ता है, आपने उनकी सुननी भी पड़ती है, उनकी जिद भी माननी पड़ती है, ठीक है। फिर उन्हें टेक्निक से, ट्रिक से, बातों से कन्विंस भी करना पड़ता है। सो हाँ, दीज थिंग्स हैपन। हाँ, लेकिन उनको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना पड़ता है, उन्हें इस चीज के लिए समझाना पड़ता है कि नाउ यू आर एट दिस एज, एंड ठीक है। आपको अगर बहुत अच्छे से रहना है, आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है, आपको सब काम खुद ही करने हैं, तो यू नीड टू केयर फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग। बिल्कुल। जैसे कुछ चीजें हैं उनके अंदर, अगर फॉल इंजरी की कंप्लेन्स है, दे डोंट हम्म। लाइक टू यूज स्टिक, दे डोंट लाइक यू टू यूज वॉकर, क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए जरूरी होता है, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है उस चीज के लिए। फिर उन्हें छोटे छोटे टास्क घर के असाइन करने होते हैं, कि लाइक अगर बड़ी एज है, कोई काम नहीं है, यूजुअली ना घर वाले कोई काम नहीं देते, बिल्कुल भी कोई काम नहीं देते, एक जगह बिठा देते हैं, ठीक है। ठीक है। खाना उनको दे दिया, उनके हाथ में पानी उनके हाथ में दे दिया, उन्हें हर चीज मिल रही है, वो सारा दिन बैठे हुए हैं। अगर छोटे घर में बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो वो आके बात कर लेंगे, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी करने को ऐसा जी। नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पौधों में पानी डाला जा सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है, बाहर जाया जा सकता है, ठीक है। कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो सकती है उनके लिए, ठीक है, बच्चों को कहानियां सुनाना हो सकता है, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है। अगर लेडीज हैं तो वो बैठे बैठे वेजिटेबल कट्स कर सकती हैं, अगर उनके हाथ ठीक हैं, ठीक है, गाइड कर सकती हैं, मैं कहती हूँ रेसिपीज बता सकती हैं, ठीक है। ये हाँ छोटे जी। छोटे टास्क है। इवन एक स्ट्रोक पेशेंट है, ठीक है, पैरालाइज हो गया, हाथ नहीं चल रहे, पाँव नहीं चल रहे, मुंह चल रहा है, उस मुंह से भी तो बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं ना। शी विल एंजॉय इट। या। आपको पता है खाना कैसे बनता है, कोई इशू नहीं है, आप उनको बिठाएं, मुझे नहीं आता, आप बता दें भाई, आप बताती जाए, मैं करती जाऊंगी, दे विल फील हम्म। एम्पावर, दे विल बिल्कुल फील इंडिपेंडेंट, एम्पावरमेंट। उन्हें लगेगा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कुछ किया, ठीक है, तो वो उनकी विल जनरेट करती है, ठीक है। एग्जैक्टली। इस तरह के कुछ छोटे छोटे टास्क है, आप उनसे पूछ ले कैसे होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो आपको सिखाएं। उनके अंदर ये स्किल होती है ना, कि वो इतना सीख चुके, अब उन्हें सिखाने हाँ का जी। मौका मिलता है बिल्कुल टू डू इट। डेफिनेटली। उनके साथ इस तरीके से ज्यादा अच्छे से कराया जा सकता है, कि जब वो कुछ नहीं करना चाहते तो आप कहते हैं आपको नहीं आता, वो आपको सिखाने के चक्कर में खुद कर लेते ओह डेफिनेटली। ठीक है। So, okay, we have talked about like all the age groups. I think from audience, I hope it was clear. हमने काफी डिटेल में सादिया ने बताया कि एनओटी के किस किस डोमेन में किस तरह से काम कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा एंड वील डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सादिया, एंडिंग में आई थिंक मैं यही आपसे कहूंगी कि लाइक अ टॉपिक वाज व्हाट डज इट मीन टू बी एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो एंडिंग में आप हैं। इस टॉपिक की एक हाउ वर्ड क्या डिफाइन आप करेंगे, क्या डिफाइनिंग मोमेंट आप यंग स्टूडेंट्स के लिए छोड़ के जाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैन हेल्प अदर्स टू ब्रिंग मिरेकल्स इन देयर लाइफ, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग होल हार्टेडली, इफ यू आर वर्किंग पैशनेटली, या। हॉलिस्टिकली, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप डेली कुछ दे दें, कुछ देकर जाएं अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। अ, ऐसे काम कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक सही काम होगा, बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ये एबिलिटी है उसके करियर को लेके, उसकी स्टडीज को लेके, कि वो लोगों की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकता है। हम लाइफ सेवर नहीं होते, वो नहीं जी। कर सकते, वो अल्लाह ने करना है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हम लाइफ को इतना अच्छा बना सकते हैं कि एक इंसान खुशी से, हंसी से, होप के साथ, उम्मीद के साथ अपनी बेशक। बाकी जिंदगी गुजार सकते। डेफिनेटली तो दैट हम वाज ये रियली कर सकते ब्यूटीफुल। हैं, हमें ये कर लेना चाहिए बस। Definitely. Thank you. Thank you so much, Sadia. And I would like to thank everyone for joining us. Thank you for your kind comments. Thank you, Alia. She has said it's a very informative session. So thank you so much. We hope you enjoyed this. Stay safe, stay happy, stay healthy, and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।